Church, this morning, we should have the attitude of gratitude. You know, there are many things that we take it for granted in life. For example, if you go to somebody in the hospital and ask them, what are you most happy and thankful about? They will say, they look at the sunshine and they will say that even the sunshine I'm thankful for, the birds up in the air, the clouds, and the people that I am with, the very gift of life that I'm thankful for, which we take it for granted. This morning, let us have this attitude that we are alive, it's because of God's grace. We are who we are. It is only by God's grace. As we sing this first song, Lord, Dhanya Tera Naam, Dhanya Tera Naam. धन्य तेरा नाम बहुत यकीन में परिपूर्णता में धन्य तेरा नाम बंजर हालातों में जंगल के रास्ते धन्य तेरा नाम तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति जब अंधेरा तो जाए गाऊं तभी धन्य तेरा नाम है प्रभु धन्य तेरा नाम ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु धन्य तेरा तेजस्वी नाम. Thank you, Lord, for who you are and what you have done. धन्य तेरा नाम जब सूरज सुहाना हो जब सब कुशल मंगल हो धन्य तेरा नाम मुश्किलों राहों में दर्द हो भले अर्पण में धन्य तेरा नाम तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति जब अंधेरा जाए गाऊं तभी धन्य तेरा नाम है प्रभु धन्य तेरा नाम धन्य तेरा नाम है प्रभु धन्य तेरा तेजस्वी नाम तू ही देता है तू ही लेता है यहोवा मेरा दिल का है धन्य तेरा नाम तू ही देता है तू ही लेता है यहोवा धन्य तेरा नाम है प्रभु धन्य तेरा तेजस्वी नाम धन्य तेरा नाम है प्रभु धन्य तेरा नाम ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु धन्य तेरा तेजस्वी नाम. Hallelujah, we lift your name on high. Oh Lord, we thank you, thank you, thank you. Lord, we lift your name on high. Lord, whenever we lift your name on high, you come there. You change the circumstance of Father. Lord, this morning, no matter how many people are around us, oh Father, 1,000 or 10,000, it doesn't matter. When you are with us, we are the majority, oh God. One plus God is always a majority. This morning, oh Father, there are financial debts that is there, oh Father. There are diseases in our families, oh Father. There are people, those who are dying in the house, oh God. But Lord, we want you
to be with us. करते हैं तेरे हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। ओ यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। ओ यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी। ऊंचा सबसे ऊंचा हो, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। ऊंचा, Lord, we lift your name, we lift your name। ओ सबसे ऊंचा है तेरा नाम। We lift your name with a heart full of fun. Jesus, you're amazing God. आत्मा सच्चा तेरी आराधना कर। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे। Lord, we lift your name। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे। ऊंचा we lift, ऊंचा सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी। ऊंचा सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। We'll lift your name, महिमा, महिमा हो तेरी। Oh Jesus, we lift your name। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी,
यीशु तू ही है हमारा प्रभु। ओ यीशु तू ही है Lord, you are glorious. You are wonder-working God. You are awesome, oh Father. We lift up your name on high. Glory to the Lamb of God, the God who beat death, the God who has risen from the dead, the God who has the control of a universe, the God who has given us the inheritance, the God who has given us the eternal life, the God who calls us by name. Lord, we thank you, Father. We lift up your name on high. As we sing this last song, Mahima, Mahima, Lord, glory, glory to you alone. For you alone, Mahima, Mahima, Mahima तुझको, तू अमान है, महिमा के योग्य है, तू है सिंहासन पर और तेरे हम आराधना करे, तू ही है सिंहासन पर। Glory, 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 glory to the Lamb. Glory, 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 glory to the Lamb. You are glorious and worthy to be praised. You are the Lamb of God, and unto you we lift your voice and say, your Lamb upon the throne. महिमा, महिमा तुझको, तू महान है, महिमा का योग्य तू है सिंहासन पर। Lord, you sit on the heavens, of Father. Heavens is your throne, and the earth is your footstool, O God. Take this time to lift up the name of the Lord on high. Whatever your problems are, whatever that you're going through, bring it to the feet of Jesus. It's time to cast everything under the feet of Jesus, because He alone can change our circumstance. He can change our lives. He can change our friends, change our financial situation. He alone can change. सिंहासन पर और तेरे हम आराधना करें, तू है सिंहासन
महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरे हम है, तू है सिंहासन पर. Lord, we come to the throne of grace, O Father. We come to you and we say, Lord, we love you. Lord, you are great. You do miracles so great. You're wonderful and wonder-working God. This evening, Lord, this morning we come to you. This morning, our hearts, we bring it unto you, O God. Our hearts are filled with a lot of needs and wants and problems, difficulties, a lot of things that we have in our heart. But we know the answer is found only in your presence and your name. For we believe this morning, O Lord, you alone can change. You have a purpose in our life, O Father. Let that be accomplished, O Father. We thank you, Lord. We thank you. We give you the glory and honor, Lord. Especially this very morning, people, those who are praying, interceding, asking the Lord to intervene in their lives. We pray, let that prayer be answered. Let there is a healing, oh Father. Let deliverance, let transformation happen, oh Father, in their lives, oh Father. We thank you. Lord, we believe you're a God who is sovereign. You're a God who is going to answer all our prayers, oh Father. We thank you. We give you all the glory and honor. Lord, we give the service into your hand. Let the word penetrate our heart and speak to us and change and transform us. Mold and mend us, oh God. We give the rest of the service into your hands. We give you all the glory and honor. In Jesus' most precious name we pray. Amen, amen, and amen. प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्यारे नाम में सबको जय मसीह की। आज के इस पवित्र दिन में NLAG के सभा से आप लोग सबको जो है स्वागत है। चाहे आप फेसबुक में देख रहे हैं, ऑनलाइन से देख रहे हैं और यूट्यूब और जो है किसी भी माध्यम से देख रहे हैं, परमेश्वर आपका जो है आशीष देगा और जो है आज आपका स्वागत है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। आज हमने परमेश्वर की आराधना की, गीतों को गाया। परमेश्वर की उपस्थिति अब हम हर एक को छुएगी और हर एक को स्पर्श करेगी। परमेश्वर जो है जिंदा खुदा है और जो है हमारे बीच में मौजूद है। वो हमें आशीष देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। परमेश्वर जो है इतना महान और पवित्र है, वो जो है हमें प्यार करता है। उसने अपने बच्चों के लिए जो है अपने बेटे को कुर्बान किया। वो जो है इस संसार में आकर उसने कुर्बानी की, उसने ताड़ना सही और जो है दुख सहा। अपने आप को जो है क्रूस की मृत्यु तक उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। इतना प्यारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, उसकी हमें स्तुति हमेशा करते रहने चाहिए। आज नाजरीन जो भी आज इस सभा में शामिल हैं, परमेश्वर सबको जो है छुएगा और आशीष देगा। परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा, इस बात को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ नियंत्रण में है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, दुखी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। उसने हमें बनाया है, उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए हमें जो है हमेशा आनंदित रहना है। पौलुस कहता है अपने पुस्तक में कि हमेशा आनंदित रहो।
प्रभु में हमेशा आनंदित रहो, इस प्रकार वो कहता है। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। आज उसके सन्निधान में आकर जो है हम लोग आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं, इसलिए अपने ध्यानों को परमेश्वर की तरफ केंद्रित रखें और जो है यहाँ वहाँ अपने ध्यान को बिखरने न दें, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जिंदा और पवित्र और आशीष देने वाला खुदा है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। जहाँ कहीं भी आप लोग बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, जहाँ पर भी इस संदेश को देख रहे हैं, परमेश्वर हर एक को जो है आज स्पर्श करेगा। यदि कोई बीमार आया है उसको छुएगा, चंगाई देगा। यदि किसी भी उम्मीद से वो आज इस आराधना को देख रहा है, परमेश्वर उस उम्मीद को पूरा करेगा। यदि बेरोजगार है उसको नौकरी देगा, जो व्यापार में परेशान हैं उसको परमेश्वर जो है दिशा निर्देश देगा। जिसके जीवन में विश्वास की कमी है, परमेश्वर उसके जीवन में विश्वास का उदय कराएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जिंदा और सच्चा परमेश्वर है, सब कुछ नियंत्रण उसके हाथ में है। हालेलुया। इसलिए हमें खुशी होकर जो है उसके सन्निधान में आना है, विश्वास के साथ आना है। यदि विश्वास की कमी है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, विश्वास निश्चय ही परमेश्वर आपका बढ़ाएगा। आइए हम स्तुति करें, उसकी महिमा करें। इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, प्रार्थना करेंगे। आइए आंखों को बंद करें, मिलकर प्रार्थना करेंगे, एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। जो भी आप लोग मन में सोचा हुआ है परमेश्वर जरूर उनको पूरा करेगा। आइए आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी आशीषों के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। तू महान और सच्चा परमेश्वर है। तूने परमेश्वर हमें बनाया है, परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर जब हम भटके हुए थे, परमेश्वर तूने हमारे खातिर अपने बेटे को भेजकर परमेश्वर तूने उसको परमेश्वर एक हालेलुया बलिदान के रूप में परमेश्वर उसको दिया। परमेश्वर वो जो है उसने आदर्श का रूप परमेश्वर जीवन बिताया और उसने क्रूस की मृत्यु सही। परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद करते, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद करते। परमेश्वर तू भला परमेश्वर है। हालेलुया। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर। हालेलुया। जो परमेश्वर विश्वास को परमेश्वर छोड़कर परमेश्वर हालेलुया उम्मीद के साथ बैठा है परमेश्वर। हालेलुया। उनके जीवन में परमेश्वर उम्मीद का उदय हो परमेश्वर, विश्वास की उदय हो परमेश्वर। अनुग्रह कर परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए हर एक भाई बहन के जीवन में काम कर परमेश्वर। वे लोग उद्धार को देख सकें, ऐसा अनुग्रह कर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर विश्व भर के परमेश्वर लोगों के लिए परमेश्वर हर एक व्यक्ति जान जाए कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही जिंदा खुदा है। इस बात को हर एक व्यक्ति जान जाए, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। हर एक परमेश्वर तेरा वचन कहता है तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर जो भी विश्वासी भाई बहन अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है, उनके घरों में तू परमेश्वर काम कर परमेश्वर। किसी भी तरीके से सेवकों को भेज कर परमेश्वर हाँ उनके परिस्थितियों में प्रवेश करके किसी भी तरीके से वे लोग जान जाएं कि तू सच्चा परमेश्वर है। प्रार्थना करते हैं भारत के हर एक नागरिक के लिए परमेश्वर, भारत का हर एक नागरिक सच को जान जाए, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। भारत के शासकों के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और परमेश्वर हर एक परमेश्वर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो ऊंचे पद में विराजमान हैं परमेश्वर, वे लोग सच को जान जाए, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो व्यापार में परेशान हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अनुग्रह कर परमेश्वर, वे लोग परमेश्वर लाभ को देख सकें, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। तेरी नाम की महिमा होने पाए, तू बढ़े और हम घटें परमेश्वर। आज के संदेश को परमेश्वर सबके लिए आशीष करके दे परमेश्वर। तू जिंदा खुदा है परमेश्वर। हालेलुया। काम करने वाला परमेश्वर है तू परमेश्वर। गूंगा परमेश्वर नहीं कि किसी की प्रार्थना को न सुन सके परमेश्वर। हालेलुया। तेरा हाथ छोटा नहीं हो गया परमेश्वर, तेरा कान बहरा नहीं हो गया कि परमेश्वर तू सुन न सके परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक के जीवन में काम कर। हर एक व्यक्ति जो इस संदेश को देख रहा है, सुन रहा है परमेश्वर, उनके जीवन में तू काम कर। वे लोग सच को जान जाएं, वो उद्धार को प्राप्त कर सकें और बहुतायत का जीवन को प्राप्त कर सकें। अनुग्रह कर, दया कर। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तू देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब कहें आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के संदेश का शीर्षक है कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में विपत्ति आने नहीं देगा। हमारे जीवन में कोई भी विपत्ति आने वाले दिनों में नहीं आएगी। हम पढ़ेंगे सपन्या की पुस्तक 3:15 जिसका ख भाग इस प्रकार कहता है, इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम लोग इन दिनों में, महामारी के दिनों में हम लोग जो है लोग परेशान हैं। बहुत से लोगों की उम्मीदें जो है परेशानी के उसमें लगी हुई है। लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में आशीष आएंगी कि नहीं आएंगी। इन दिनों में लोगों का जो है नौकरी चली गई है, व्यापार जो है ठप पड़ा है। बहुत से लोग जो है घर गृहस्थी में अशांति को देख रहे हैं। बहुतों का
वित्त जो है संकट में है, अर्थ संकट में है, लोग परेशान हैं, लोगों को जो विद्यार्थी लोग जो हैं वो लोग भी नहीं जाने क्या करें ये सोचकर जो है परेशान है। लेकिन परमेश्वर का वायदा आज आप लोगों के पास आ रहा है, इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी, फिर से विपत्ति न भोगेगी। आज तक जो भी हमने नुकसान उठाया है, जो भी खोया है, इतना ही रहेगा। इसके बाद फिर परमेश्वर का वायदा है, फिर विपत्ति नहीं होगी। हम लोग जो इजरायली हैं, जो हम परमेश्वर के जन हैं, जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, परमेश्वर का वायदा है तो फिर विपत्ति न भोगेगी। अब से लेके परमेश्वर हम लोगों को जो है आशीष देगा और हमें जो है विपत्ति हमारे जीवन में नहीं आएगी। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं भाइयों और बहनों में मैं जानता हूं जो आज इस संदेश को देख रहे हैं, नौकरी खो चुके हैं, बहुतों की तनख्वाह में जो है कटौती हो गई है, बहुतों का व्यापार जो है सही से चल नहीं रहा है। बहुत से विद्यार्थी आज इस संदेश को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब मैं कौन सा कोर्स उठाऊं, कौन सा कोर्स पढूं, क्या पढ़ाई करूं आगे कि मैं जो है सही रीति से अपने जीवन का अर्जन कर सकूं। इस प्रकार बहुत से लोग सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वायदा है जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा उसके लिए ये वायदा है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। दोबारा से मैं बताता हूं, सपन्या की पुस्तक 3:15 का खवा भाग, 3 अध्याय का 15वां वचन, जिसका ख भाग कहती है, इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। परमेश्वर का वायदा है कि आपसे लेकर आप कोई बात को खोएंगे नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई विपत्ति नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर का ये वायदा है, इसको हम दृढ़ता से जो है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा पक्का होता है, वो जो है कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए हमें विश्वास करना है परमेश्वर के वायदे पर और जो है उस पर जो है भरोसा करके हम जो है अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है, हमेशा हमसे जो है प्यार करता है। हालेलुया। उसने हमें बनाया ही इसलिए कि हम जो है उसके संगति में हमेशा वास करें। हालेलुया। यही कारण था कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, वो जो है दोपहर के ठंडे के समय में उसके साथ घूमता था। हालेलुया। यही नहीं, जब आदम ने पाप कर दिया तो परमेश्वर ने उसके लिए संगति, साथ रहने की संगति के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई, अपने बेटे को भेजा और वो कुर्बान हुआ और जो है दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठा, और आज जो है पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि हम लोग जो है जब दूसरे आगमन में यीशु मसीह दोबारा आए तो हम लोग निर्दोष और निष्कलंक पाए जाएं। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, आज भी हमारे लिए परमेश्वर जो है प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर प्रार्थना कर रहा है ताकि हम लोग जो है उसके आने पर निर्दोष और निष्कलंक पाए जाएं और उठा लिए जाएं। परमेश्वर इतना प्यार करता है हमसे। हालेलुया। परमेश्वर हमारा महान है, उसका वायदा जो है पक्का है, वो सच्चा बात करता है, जो भी उसकी बातें हैं वो पूरी होती हैं, वो टलती नहीं, उसका वचन जो है कभी भी टलता नहीं। इसलिए वो कहता है, इसलिए तू विपत्ति न भोगेगी, ऐसे वो कहता है। इसलिए हमें जो जब भी प्रार्थना करें, आज से लेकर जब भी प्रार्थना करें, ये बोल के प्रार्थना करें, तेरा वचन कहता है कि फिर से विपत्ति नहीं भोगूंगा। हम लोग जो आत्मिक इजरायली हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को विश्वास किया है और उसके अनुयायी हैं, हम लोग उसकी आज्ञा को मानते हुए जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर का वायदा है कि हम लोग विपत्ति को नहीं भोगेंगे, इसलिए हमें जो है विश्वास करना है परमेश्वर पे। दूसरी बात, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। अय्यूब नामक एक पुस्तक है बाइबल में, जिसमें अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं। बाइबल में बहुत से ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने अपनी विपत्तियों के समय में, नुकसान के समय में परमेश्वर ने उनके जीवन में बदलावट लेकर आया और आशीष को लेकर आया। उनकी विपत्तियां जो हैं बदल गई। लेकिन एक व्यक्ति है अय्यूब, जैसे मैंने अभी कहा, अय्यूब एक व्यक्ति जो था, वो जो है इतना नुकसान उसने भोगा कि जो है भयंकर नुकसान उसने अपने भोगा, विपत्तियां भोगी और दुख सहा, और फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। बाइबल बताती है, अय्यूब की पुस्तक 1, 2 और 3 पढ़ेंगे। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां और बहुत से दास दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। पूर्वी लोगों के देशों में वो बहुत धनी था और बहुत जो है बड़ा व्यक्ति था। उसको लोग जो है
मान देते थे, आदर करते थे, और इतना पैसा था, इतना धन संपत्ति थी। उसके परिवार में बहुत से जो है लोग थे, 10 बच्चे थे, और जो है उसकी दास दासियाँ थी। और हमने जैसे पढ़ा कि उसके बहुत से भेड़ थे, भेड़ियाँ थी, और भेड़ और बकरियाँ थी, और 1000 ऊँट थे। और ये सब होने के बावजूद वो जो है खुश परमेश्वर की इबादत करता था, समय समय पर परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाता था, और जो है ईमानदार व्यक्ति था, वो खरा था। परमेश्वर ने उसके बारे में गवाही दी। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि परमेश्वर ने गवाही दी कि वो खरा व्यक्ति है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसके जीवन में ऐसी क्या बात आई कि वो जो है परेशान हो गया। उसके जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आई। उसके सारी चीज़ें, उसकी सबसे पहले उसकी जो है संपत्ति खत्म हो गई। उसके घर में जो भेड़ बकरियां थीं, जो गाय बैल थे, जो ऊँट थे, जो भी उसके पास संपत्ति थी, सब कुछ खत्म हो गया। यही नहीं, दास दासियां भी उसकी चली गईं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और दूसरा, उसके बच्चे मर गए। 10 बच्चे थे, 10 बच्चे मर गए। और यही नहीं, उसके जो है पत्नी और रिश्तेदार, उन्होंने भी उसको छोड़ दिया। वो कहती है, पत्नी कहती है कि तू इतना गरीब हो गया है, परमेश्वर ने तुझे इतना कर दिया है, तू अब परमेश्वर को जो है छोड़ दे और जो है अपने प्राण को त्याग दे। लेकिन परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसने, अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया। यही नहीं, अय्यूब की पत्नी और रिश्तेदार उसको छोड़ के चले गए, उसकी संपत्ति चली गई, और उसके बेटे मर गए। यही नहीं, आखिर में उसके सर से लेके पैर तक फोड़े आ गए, और वो जो है परेशान हो गया। लेकिन अंतिम समय तक उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। वो बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर की ओर जो है हमेशा विश्वास योग्य रहा। बाइबल बताती है, अय्यूब की पुस्तक 13:15 में लिखा है, उसने कहा वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूँगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। वो परमेश्वर को जो है इतना विश्वास किया उसने, अपने सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी, उसके परिवार के सारे जन उसके खिलाफ होने के बाद भी, उसके दोस्तों ने उसके बारे में मजाक उड़ाया, तब भी उसने जो है परमेश्वर को नहीं छोड़ा। वो कहता है, दोबारा पढ़ता हूँ, अय्यूब की पुस्तक 13:15 में, वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूँगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसने कहा कि परमेश्वर यदि मुझे मार भी डाले, तब भी मैं उस पर विश्वास करूँगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमें हमारे जीवन में ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। हमें परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। हमारे जीवन में चाहे कैसी ही परिस्थिति क्यों ना आ जाए, प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं और गलत बातें हमारे जीवन में होने लगे, लेकिन परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वो हम प्यार करता है, इस बात का विश्वास हमें होना चाहिए। और चाहे हमारे जीवन में सब कुछ ही खत्म हो जाए, सब कुछ खो जाए, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। हमें उसको आदर करना है, उसको जो है आराधना करना है, उस पर भरोसा रखना है। सबसे पहली बात, हमें उस पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास करना है, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी आ जाए। जैसे अय्यूब हम देखते हैं, उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, उसके पास न जाने क्या क्या था, वो सब कुछ उसके जीवन में से चला गया, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसका परमेश्वर पर भरोसा कभी नहीं टूटा। उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा, विश्वास रखा। और क्या कहता है, यदि वो परमेश्वर मुझे मार भी डाले तो मैं उस पर भरोसा करूंगा, ऐसा उसने कहा। हालेलुया। उसकी पत्नी ने कहा कि तू परमेश्वर को छोड़कर तू हमेशा प्रभु प्रभु कहता है, प्रभु ने तुझे क्या दिया है, सब कुछ तेरा चला गया है, अब तो कम से कम तेरे शरीर में खत्म हो रहा है, तेरा शरीर में फोड़े फुंसियाँ आ गई हैं, शरीर खराब हो गया है, तू उसको धिक्कार के अपने प्राण को दे दे। और क्या मुश्किल होनी चाहिए अय्यूब के लिए। अय्यूब के सारे संपत्ति जाने के बाद उसके शरीर में फोड़े फुंसी आ गए, उसके रिश्तेदार भी उसको छोड़ के चले गए, उसके दोस्त भी उसके पास आकर मजाक उड़ाने लगे, ऐसा बाइबल बताती है। हमें देखते हैं कि अय्यूब ने इतना होने के बाद भी परमेश्वर को विश्वास किया, उसके ऊपर जो भरोसा था उसने नहीं छोड़ा। हालेलुया। इतना नहीं, वो परमेश्वर पे इतना विश्वास करता था कि वो कहता है 19 का, अय्यूब की पुस्तक 19:25 में हम पढ़ते हैं, वो कहता है, मुझे जो तो विश्वास है
कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसे अय्यूब को विश्वास था और वो कहता है निश्चय है कि मेरा बनाने वाला जो है जीवित है, वो जो है खड़ा होगा। हालेलुया, अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया, ये भविष्यवाणी करता है कि यीशु मसीह जो जिंदा खुदा है वो निश्चय ही जीवित है। हालेलुया, और आने वाले दिनों में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया, इतना विश्वास अय्यूब को परमेश्वर पर था। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। भाइयों और बहनों, आज इस संदेश को देख रहे नाज़रीनों, आज आपके पास एक संदेश आ रहा है। ध्यान से परमेश्वर पर का विश्वास को न छोड़ें। अपने जो विश्वास आपका परमेश्वर पर है उसे आपने कभी भी नहीं छोड़ना है। चाहे आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, आपकी नौकरी चली जाए, आपका व्यापार ठप हो जाए, लेकिन परमेश्वर को जो है हमेशा विश्वास करना है। हालेलुया, आपके परिवार वाले आपको छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर पर का विश्वास आपका हमेशा अटल रहना चाहिए, उस पर भरोसा हमेशा करना। जैसे हम देखते हैं अय्यूब कहता है परमेश्वर यदि मुझे घात भी कर दे तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। हमें परमेश्वर पर भरोसा हमेशा करते रहना चाहिए। और यही नहीं, वो भविष्यवाणी करता है कि यीशु मसीह जो जिंदा खुदा है, जब वो दोबारा आएगा वो जो है पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। भाइयों और बहनों, आज के इस संदेश से हम यही बात जानते हैं कि महामारी आ जाए, हमारी नौकरी में परेशानी आ जाए, चाहे व्यापार में परेशानी आ जाए, हमारी पढ़ाई में रुकावट आ जाए, लेकिन हमें परमेश्वर पर का भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। उसने हमें बनाया है। हालेलुया, वो हमारे ऊपर नज़र रखे हुए है। सारी परेशानी, सारी दिक्कतें परमेश्वर के ऊपर आप डाल दीजिए, क्योंकि उसको हमारा ख्याल है। हमें उस पर भरोसा करना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आज भी हमारे साथ है, आज हमारे बीच में है। वो कह रहा है आज से लेकर आपके जीवन में विपत्ति नहीं आएगी, ये विश्वास रखिए। हालेलुया, अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर ने इतनी आशीषें दी बाद में। हालेलुया, इससे पहले यही नहीं, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, सबसे पहले हमें परमेश्वर के ऊपर का भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसने हमें बनाया है। हालेलुया, वो हमारा ख्याल करता है, इस बात को हमें याद रखना है। हालेलुया, यही नहीं, दूसरी बात, हमें परमेश्वर दुगना आशीष देगा। एक नहीं, दो नहीं, दुगना आशीष देगा हमें। जो हमारे पास था उससे ज़्यादा हमें आशीष देगा। यदि आपने कुछ चीज़ खोई है इस महामारी के दिनों में, लॉकडाउन के समय में, परमेश्वर का वायदा है अब से तू विपत्ति ना भोगेगी। अब से लेकर आपके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगी। आपके जीवन में जो भी आपने खोया है इन महामारी के कारण, बीमारी के कारण, लॉकडाउन के कारण, आपको परमेश्वर दुगना लौटाएगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। बाइबल बताती है, अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं, अय्यूब की पुस्तक 42 का 10 से 17 यदि हम पढ़े, उसमें लिखा है अय्यूब को परमेश्वर ने दुगना दिया। हालेलुया, थोड़ा नहीं, जो था उससे ज़्यादा मिला। हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक 42 का 10 में पढ़ते हैं, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पहले पास था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। जो उसके पास था उससे दुगना परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, और आगे भी पढ़ते हैं, तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया। जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस समय उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बोली दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों में से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियाँ हो गई और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का इस प्रकार उसने नाम उसका रखा। और हम देखते हैं इस 16वें वचन में, इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने उसे दुगना आशीष दिया, जो उसके पास था उससे दुगना परमेश्वर ने अय्यूब को दिया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमें भी परमेश्वर दुगना आशीष देगा, दुगना आशीष देगा। जो हमारे पास था, जो खोया है हमने, जो विपत्ति हमने भोगी है, यदि बीमारी हमने भोगी है, यदि कुछ नुकसान हुआ है हमारे जीवन में, उन सब का परमेश्वर दुगना देगा। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं, अय्यूब ने सब कुछ गंवाने के बाद भी
परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उस पर का भरोसा उसका नहीं हटा। हमारा भी ऐसे ही परमेश्वर पर का भरोसा हटना नहीं चाहिए और परमेश्वर पर विश्वास करना है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें दुगना आशीष देगा। एक बार एक व्यक्ति जो कि इंडोनेशिया से चेन्नई में आया था, हमारे कलीसिया में आकर उसने गवाही दी। उसने बताया कि उसके जीवन में ऐसी विपत्ति आई कि सबसे पहले उसके व्यापार जो है ख़त्म हो गया, सब कुछ उसके पास जो था वो सब खत्म हो गया, पैसा दम संपत्ति सब कुछ खत्म होने के बाद उसकी पत्नी और बच्चे भी उसको छोड़कर चले गए। कितना दुख हुआ होगा, वो अकेला परेशान हो गया। यही नहीं, उसके शरीर में एक बीमारी आ गई। उसने इतना तक सोच लिया कि मैं खुदकुशी कर लूँगा। जब ऐसा सोचकर अपने दिनों को बिता रहा था कि एक व्यक्ति, मसीही व्यक्ति ने उसके पास आकर कहा कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, आपके जीवन में खुदकुशी एक रास्ता नहीं है, सही रास्ता नहीं है, अब यीशु मसीह पे भरोसा करो। ऐसा कह के उसने यीशु मसीह के बारे में बताया और उसके साथ प्रार्थना की। कुछ समय बिताया, यीशु मसीह के बारे में उसने बताया और उससे प्रार्थना की। प्रार्थना करके वो व्यक्ति चला गया, मसीही व्यक्ति चला गया। और वो व्यापारी जिसका सब कुछ खो गया था, जिसकी पत्नी बच्चे भी चले गए थे, सब कुछ खत्म हो गया था, उसने घुटने में आकर प्रार्थना की, यीशु मसीह पे भरोसा किया। उसने कहा, मैंने सारे मंदिर जाकर देख लिए, सब मूर्ति पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन यीशु मसीह मैं आखिरकार तेरे पास आया हूँ, विश्वास करता हूँ कि तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा। ऐसा कहकर पूरे भरोसे के साथ उसने प्रार्थना करके वो सो गया। उसके कुछ ही दिनों बाद, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसके जीवन में एक विश्वास की उदय हुई। उसने भरोसा करना शुरू कर दिया कि मैं आगे से जो है जो भी काम करूंगा सही होगा, ऐसा विश्वास होने लगा। उसने यीशु मसीह पे विश्वास किया उस पर, और दिल में उसने जब ठान लिया कि परमेश्वर हमारा जो है सच्चा परमेश्वर है, मेरे जीवन में कुछ काम जरूर करेगा। जब ऐसा उसने विश्वास किया तो उसके जीवन में जो शरीर में बीमारी थी वो चली गई। यही नहीं, बीमारी जाने के बाद उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। तो उसके पत्नी ने देखा कि पत्नी ने देखा कि उसके पति ठीक हो गया है, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया है, तो वो भी वापस आ गए, उसके बच्चे भी वापस आ गए। ऐसा दिन बीतने लगा, उसके जीवन में विश्वास की उदय हो गया और वो खुश रहने लगा। उसकी बीमारी भी चली गई थी। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। यही नहीं, उसके कुछ दिन बाद वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं। उसके पास कुछ पैसे बचे थे, वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं। उन्हीं दिनों में एक भाई आया, विश्वासी भाई आया। उसने कहा कि मुझे एक कोयले के सुरांग आपको दिखानी है जिसमें बहुत से कोयले हैं, आप उसका व्यापार कर सकते हो, उसे खरीद लीजिए। तो उसने कहा कि मेरे को तो कोयले का व्यापार करना नहीं आता, कोयले के बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं क्या करूं। उसने कहा परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर जरूर आपके रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। उसने विश्वास किया और जो पैसे उसके पास थे उसने कोयले का एक सुरंग खरीद लिया और उसको जो है कोयलों को जो है उसने निकलवा कर बेचना शुरू किया। यही नहीं, उसके बाद उसने कोयलों को जो है इतना बेचा कि उसे एक्सपोर्ट भी करने लगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसका जो है जीवन बदल गया, उसके पास पैसे आने लगे और उसने अच्छा घर बना लिया। उसके पति पत्नी खुश हो गए, उसके बच्चे भी खुश हो गए और रिश्तेदार जो उसको छोड़ गए थे वे भी उसके पास वापस आ गए। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। यही नहीं, उसके पास एक कोयले की खान थी और अब उसे 3 कोयले की खान और मिल गई। इसके साथ उसके पास 4 कोयले की खान हो गई। परमेश्वर ने उसे दुगना आशीष दिया। हालेलुया। उसने परमेश्वर को पकड़ लिया। यीशु मसीह को यदि हम पकड़ लेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, उसके साथ चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मान के हम जीवन बिताएंगे, परमेश्वर निश्चय ही हमें दुगना आशीष देगा। हमारे जीवन में जो भी नुकसान हुआ है, जो भी बातें हमने खोई हैं, उन सबको परमेश्वर दुगना में बदल कर हमें वापस देगा। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है, हमारी जीवन में काम करना चाहता है, हमें अपने दिल को खोल के उसको देना है। परमेश्वर हमें आशीष देगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यही नहीं, बाइबल बताती है कि इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में विपत्ति आने नहीं देगा। कोई भी विपत्ति, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई नुकसान हो,
चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे जीवन में उसे आने नहीं देगा। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है, वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जो भी आपकी प्रार्थना का निवेदन है, विषय है, उसे परमेश्वर को बताइए। छोटी हो बड़ी हो, सब कुछ हम परमेश्वर को बता सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। हमारे जीवन में कोई विपत्ति परमेश्वर आने वाले दिनों में नहीं देगा। एक बहन थी जो अपनी माँ के साथ रहती थी और उसका जो है बच्चा नहीं हो रहा था। उसके गर्भ में धारण बच्चा हमेशा 5 महीने में गिर जाता था। वो उससे पूछा कि भाई क्या होता है जो बच्चा आपका गिर जाता है, 4-5 महीने में गिर जाता है। वो बोलती कि मेरे को जो है 3-4 महीने गर्भ धारण किए हुए 3-4 महीने के बाद जो है मेरे को एक सपना आता है जिसमें सांप मुझे डसता है और उसी दिन जो है मेरे पेट का गर्भ जो है गिर जाता है। 4-5 महीने में गर्भ गिरने के बाद वो जो है परेशान हो जाती है। वो प्रार्थना करने के लिए हमारे पास आई थी माँ के साथ, तो मैंने प्रार्थना की उसके लिए। उसके अंदर जो है सांप की आत्मा थी जो है उसको परेशान कर रही थी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमने जब प्रार्थना की और उस सांप की आत्मा को उसके जीवन से हटाया तो उसके 3रे महीने में ही उसको परमेश्वर ने गर्भ धारण का फिर से एक अवसर प्रदान किया। जब गर्भ धारण किया उसके 2 बच्चे हुए। हाल उसके बाद से वो जो है कभी भी जो है परेशान नहीं हुई। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है। हमारे जीवन में भी, आप लोगों के जीवन में ही भी आज जो इस संदेश को देख रहे हैं, परमेश्वर का वायदा है आपके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगी। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके जीवन में खुशियों से जो है आपको जीवन को भर देगा। आपको जो है चाहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करें और जो भी दुख है, परेशानी है, विपत्ति है, नुकसान जो हुआ है, उसके ऊपर अपने ध्यान को मत लगाएं। आप परमेश्वर की तरफ अपने ध्यान को लगाएं। परमेश्वर आपको जो है आशीष देगा, दुगना लौटाएगा यदि आप उस पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। उसको छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। आप परिस्थितियों को मत देखिए, नुकसान को मत देखिए, यीशु मसीह को देखिए। हालेलुया। वो आपको आशीष देगा। वो इसीलिए आया कि बहुतायत का जीवन हमें मिले। उसने कोड़े खाए, दुख सहा, कष्ट सहा। क्यों? ताकि हम लोग जो है आशीष पा सकें। इसलिए हमें उस पर भरोसा करना है। आसपास नहीं देखना है, परिस्थितियों को नहीं देखना है, अपने नुकसान को, अपनी जो गवाया है उन बातों को नहीं देखना है। परमेश्वर को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। आइए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में हम लोग जो है परमेश्वर पर का विश्वास हमारा बढ़े। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है कि हमारा विश्वास बढ़े। हम लोग परिस्थितियों को न देखें, हम लोग जो है नुकसान हुआ है उन बातों को न देखें, बल्कि परमेश्वर को ताकते हुए अपने जीवन को बिताएं। जो वो कहता है उसको करते हुए अपने जीवन को जब बिताएंगे, परमेश्वर निश्चय ही हमें आशीष देगा। आइए हम आँखों को बंद करके अपने ध्यान को परमेश्वर की तरफ लगाएंगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे वचनों के लिए। परमेश्वर, जो वचन हमने आज सुने हैं, उन जिनकी व्याख्या हमने सुनी है परमेश्वर, जैसे तूने अय्यूब के जीवन में आशीष दी थी परमेश्वर। हालेलुया। जैसे अय्यूब ने परमेश्वर तुझे अपना परमेश्वर शरण स्थान मानकर, परमेश्वर तुझे अपना गढ़ मानकर तुझ पर भरोसा रखा, विश्वास रखा, जैसा उसका भरोसा अटल था हर परिस्थिति में परमेश्वर, जब सब कुछ उसका गवा दिया उसने, तब भी उसने तुझ पर भरोसा रखा। वैसा ही भरोसा परमेश्वर हर भाई बहन को परमेश्वर उनके जीवन में होने दे परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर। सबको दुगना आशीष दे। जो बीमार आया है परमेश्वर उनको चंगाई दे। जो परमेश्वर निराश आया है उनके जीवन में आशा का उदय हो परमेश्वर। हालेलुया। आज से लेके हर एक के जीवन में परमेश्वर कोई भी विपत्ति ना आए परमेश्वर, ऐसा तो अनुग्रह कर परमेश्वर। सबको आशीष दे। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, जलाल तो देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब कहें आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।